हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज संडे है, तो आज कुछ संडे को कुछ स्पेशल करते हैं। तो उस संडे स्पेशल सीरीज में मैं कल्पेश प्रताप सिंह आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ इंडियन एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, जो NDA 2019 सेकेंड एग्जामिनेशन में सितंबर वाले टर्म में पूछे गए थे। उनमें से आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह इंग्लिश की क्वेश्चन नंबर 1 की सीरीज ए है। ए सीरीज में आज हम देखेंगे, इसमें हमारा आपको पता है 150 क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है एंड नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या पूछा गया था सीरीज ए में, तो वो था सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स को हम देखते हैं कि कैसे इन सिनोनिम्स को, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क, व्हाट्स द क्वेश्चन, व्हाट्स द वर्ड दैट वी हैव टू फाइंड द synonyms and antonyms. So the first question, that is, he is always anxious. Here the anxious meaning always concerned about something. Concerned, that means चिंतित. तो the option that is worried, dispassionate, sluggish, torpid. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वरीड. anxious means concerned about. concerned means worried, चिंतित. तो पहले क्वेश्चन का आंसर वरीड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. सो वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. द पोएम ऑफ कबीर आर ecstatic in nature. Here the synonyms of ecstatic. What is the synonym of ecstatic? So the poem of Kabir is are very joyful, interesting. So ecstatic means joyful, interesting. तो इसका जो synonyms हो जाएगा, the synonyms of the ecstatic is rapturous. Rapturous means joyful, interesting, exciting. तो आपको इन क्वेश्चंस को ऐसे, जैसे द पोएम ऑफ कबीर की पोएम्स कैसी होती हैं? इंटरेस्टिंग होती हैं, जॉयफुल होती हैं. वी लाइक टू रीड देम, वी लाइक टू द पोएम ऑफ द राइमिंग्स ऑफ द पोएम, मीनिंग्स ऑफ द पोएम, फीलिंग्स ऑफ द पोएम. सो एक्सटैटिक मीन्स रैप्चुरस. So the third question, that is, Ravi loves seclusion, therefore he lives in the mountain. Ravi loves seclusion. Seclusion means who is apart from the others. Seclusion means जो सबसे अलग रहता हो, alone रहता हो. Who is apart from the others. So nature is not a synonyms of seclusion, because nature means prakriti and seclusion means apart from the others. Scriptures means like script, जो स्क्रिप्ट बनाई जाती है. solitariness means alone. Who live alone, that is solitariness. And seclusion means who is apart from the others. So the correct answer of the third question, that is, the synonyms of the seclusion is solitariness, alone. Who loves like to live alone. Therefore he lives in the mountain. जिसलिए वो माउंटेन में रहता है, वो अलग रहना चाहता है, सॉलिटरी रहना चाहता है. And the fourth question, that is, Hitler was a despot. The despot means the ruler who hold absolute power. You all know that Hitler was a ruler of Germany. You all know about Hitler because he was despot. He had hold the powers, absolute powers, complete power hold the Hitler. So the dictators means who hold the power
एब्सोल्यूट पावर, हु होल्ड द एब्सोल्यूट पावर, जो कंप्लीट पावर को अपने अंडर में रखता है। So the despot, the synonyms of the despot is dictator. Hitler was a dictator ruler. If you like the video, then you should share the videos to your friends, your relatives, and by this they all know about what type of questions asked in the NDA examinations. So we move to the fifth question. The imagery used in the poem is vivid. Vivid means, here the vivid means always say truth to life, जो लाइफ में ट्रूथ हो, जो सही चल रहा हो, जो एक्चुअली में हो। तो इमेजरी यूज्ड इन पोएम इज विविड, जो पोएम में इमेजरी यूज किया जाता है, वर्ड्स यूज किए जाते हैं, वो विविड होता है, वो ऑलवेज ट्रू टू लाइफ होता है, वो एक्चुअली मीनिंग बताता है हमारे लाइफ का। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लिवली। लिवली मीन्स ट्रू टू योर लाइफ, ट्रू टू लाइफ। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, लिवली। लिवली इज द सिनोनिम्स ऑफ विविड। इसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A human being is always vulnerable to other human beings. A human being always vulnerable to other human beings. Vulnerable means nowadays कोई भी ह्यूमन बींग्स दूसरे ह्यूमन बींग से सुरक्षित नहीं है, दे फील डिफेंसलेस। Vulnerable means defenseless. A human being always defenseless to other human beings. So the correct answer is defenseless. आपको भी पता होगा कि in nowadays there are a lot of crimes. So in our area, in our country, in our whole world. So this is true line. A human being is always vulnerable to other human beings. This is not nowadays. This is comes from ancient time. So the correct answer that is vulnerable synonym is defenseless. उसके बाद हम सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। His language is political and vitriolity. उसकी लैंग्वेज जो है वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक और विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक मीन्स टॉक्सिक है, टॉक्सिक। जो आपको भी पता होगा कि राजनीति जो राजनेता होते हैं वो किस तरीके के लैंग्वेजेस यूज करते हैं अपोजिशन पार्टी के लिए। हियर द विट्रियोलिक मीन्स टू अपोज द पॉलिसीज, ऑफिशियल पॉलिसीज। क्योंकि जो अपोजिट पार्टी के लीडर होते हैं वो कभी भी जो पार्टी होती है उसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते, हमेशा उसके रिस्पेक्ट में अपना कुछ अलग सा कंक्लूजन देते हैं। तो हियर द विट्रियोलिक मीन्स अब्यूजिव, वो हमेशा हिज लैंग्वेज इज पॉलिटिकल। यहाँ पे वो बताना चाहता है कि उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी भाषा है वो पॉलिटिकल है, राजनैतिक है और विट्रियोलिटिक है, अब्यूजिव है, भद्दी है। सो द एट्थ क्वेश्चन दैट इज the managing director of the company declared that he is broke and there is a need to seek support from the government. कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो डिक्लेयर करता है, he declared that he is broke. He is broke means उसने bankrupt कर दिया, he is broke and there is need to seek support from government, और यहाँ पे गवर्नमेंट से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ब्रोक का मतलब वो बैंकरप्ट है, मेकिंग प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पे बैंकरप्ट इज द करेक्ट सिनोनिम, दैट इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिक्लेयर दैट ही इज बैंकरप्ट। वो जो है दिवालिया हो गया है और उसको क्या है, नीड की ज़रूरत है। किससे? गवर्नमेंट सपोर्ट की नीड है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही लव्स डूइंग नास्टी थिंग्स। वह नास्टी थिंग मतलब आउट ऑफ बाउंड्री
वो ही लव्स डूइंग आउट ऑफ बाउंड्री, वो आउट ऑफ बाउंड्री जो है नास्टी थिंग, मतलब कि वो रूल के अंदर नहीं रहना चाहता, वो आउट ऑफ बाउंड्री जाता है, तो नास्टी थिंग्स, वह नास्टी थिंग्स को करना पसंद करता है। तो नास्टी थिंग मीन्स आउट ऑफ बाउंड्री, आउट ऑफ बाउंड्री। नाइस, नाइस इज ग्रेट, वेरी गुड, दैट इज नॉट अ आउट ऑफ बाउंड्री। fastidious means also good. So the foul is out of boundary, to go out of boundary। हम देखते हैं ना कि फुटबॉल्स में, कबड्डी में फाउल होते हैं, फाउल मीन्स वो बाउंड्री के बाहर जाते हैं। तो यही यहाँ पे नास्टी का भी मीनिंग होगा कि आउट ऑफ बाउंड्री, फाउल। उसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन जो है, ही कुड नॉट मस्टर करेज टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। उसके पास करेज नहीं है कि वो इकट्ठे होकर के, मस्टर मीन्स इकट्ठे होकर के अपने फ्रेंड के सामने सही बोल सके। ही कुड नॉट, मस्टर मीन्स इकट्ठे होना, मीन्स गैदर। ही कुड नॉट गैदर करेज टू स्पीक द ट्रूथ बिफोर हिज फ्रेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द 10th क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने 10 सिनोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जो एनडीए 2019 के सेकेंड एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। तो इसके बाद अब हम चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। ये हम क्यों करा रहे हैं, ताकि आप कुछ एस्टिमेट कर सकें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कुछ आइडिया हो सके। और कई बार इसके ऑप्शन से क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछता है। यहाँ पे विविड का सिनोनिम पूछा है, अगर आपको विविड की मीनिंग पता होगी तो कहीं पे इसका नेक्स्ट एग्जामिनेशन में इसके एंटोनिम पूछते हैं, या फिर इसको दे करके ऑप्शन में इसको दिए रहेंगे। तो इस तरीके से इसका पैटर्न चलता है। तो इसीलिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती हो, तो उसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडियम, फ्रेजेस, स्पोर्टिंग एरर्स पूछे जाते हैं। तो आप उनके साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका प्रॉफिट ले सकें। तो अब हम चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। तो यहाँ पे एंटोनिम्स जो हैं, हिज कन्वर्सेशन आर ऑलवेज अब्सर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज कन्वर्सेशन आर ऑलवेज अब्सर्ड, अनरीजनेबल। अब्सर्ड मीन्स अनरीजनेबल, अनसर्टेन, दैट इज जिसका कोई रीजन नहीं हो, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं हो। हिज कन्वर्सेशन आर ऑलवेज अनरीजनेबल। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हमें देखना है, मतलब अपोजिट मीनिंग ढूंढना है हमें। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फैर्सिकल, ये तो होगा नहीं। फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख। तो यहाँ पे हमें एंटोनिम ढूंढना है। अगर ये सिनोनिम पूछा होता तो फुलिश हो सकता था। तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या होगा, रेशनल। रेशनल मीन्स रीजनेबल, जिसका कोई कंक्लूजन हो, जिसका कोई रीजन हो। तो इसका 11th का एब्सर्ड का जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो होगा रेशनल, मीन्स रीजनेबल। इसके बाद हम 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पॉलिटिशियन वाज अ डिसीडेंट। पॉलिटिशियन डिसीडेंट होते हैं, मतलब वो किसी भी ऑफिशियल पॉलिसी को नहीं मानते हैं। डिसीडेंट मीन्स हु अपोज द ऑफिशियल पॉलिसीज। तो आपको पता ही है पॉलिटिशियन जो है एक दूसरे के अपोज होते ही हैं। हमने सिनोनिम्स में भी हमें इस तरीके का एक क्वेश्चन मिला था। तो उस तरीके से जब आप देखेंगे तो अपोज करते हैं तो वो अनकन्फर्मिस्ट होते हैं, वो कभी भी कन्फर्मिस्ट नहीं होते हैं, वो हेल्प नहीं करते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं अपोजिट पार्टी की पॉलिसी को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसीडेंट का एंटोनिम जो होगा वो हो जाएगा कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट मीन्स सपोर्टिव, जो सपोर्ट करते हो। तो यहाँ इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13th, ही रोट एन इंसिसिव आर्टिकल ऑन करप्शन इन पॉलिटिक्स। उसने कैसी इंसिसिव आर्टिकल लिखा करप्शन के ऊपर, जो पॉलिटिक्स में करप्शन है उसने उसमें इंसिसिव आर्टिकल लिखा।